everyone. Today in this video we'll be covering the fourth chapter of our NCC book, which is weapon training. So let's get into it. This will be a very short, crisp and informative video. So let's dive in. Shooting at the firing range helps a cadet master this as a sport and learn handling of a weapon for self protection. So जब भी कैडेट्स को फायरिंग की जाती है तो वो फायरिंग को एज अ स्पोर्ट भी परस्यू कर सकते हैं एंड मोर और लेस वो वेपन को हैंडल करना सीख जाते हैं, जो कि उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. Now, the art of shooting teaches you precision, accuracy, coordination of body movements, patience, and confidence, which all help you make a better person in public life. So, जब आप firing करते हैं, so these are the qualities which get embedded in you, such as the precision, because you precisely aim to your target. Then you get the accuracy in firing and the coordination of body movements, क्योंकि जब भी आप फायर करते हैं there are various parts of your body which are involved in firing. The muscular part of the hand, your right eye and the brain and various neurological function also. So जब भी आप firing को practice करते हैं, you get the precision, accuracy and coordination of body movements along with the patience and confidence. Now, what are the rifles which we used in our weapon training? We have two rifles. One is rifle .303 bore and another one is rifle .22 bore. Now, mind one thing in your mind that remember one thing in your mind is that whatever weapon which we are using in NCC, those are not currently serviceable in army. Okay, this is the very basic information which you should know, that the rifle which you are using in NCC, those are all the rifles which we are using, those are retired rifles. Then we have main parts of a rifle. These are some of the main parts. I'll highlight what the important parts are. You have to remember the stock. This is the stock, and you have to remember the heel, the outer corner, then the magazine cap along with the trigger guard, the magazine loading port, the grip, muzzle, trigger, magazine, inside fore end, the ejection port. Okay. Then we have the safety switch, then we have the bolt, extractor and carrier release. Okay? And then we have the receiver also. So these are some of the important parts of the rifle जो कि आपको practical में भी पूछे जा सकते हैं. Okay, and you can remember them by this image. Okay. Then moving ahead, you have characteristics of .303 bore rifle. I'll tell you what are the important parts. You have to just remember the length along with the bayonet, which is 5 feet 1.5 inches. You have to remember the weight, which is 9 pounds 11.5 ounce, and the effective range, not the minimum maximum, just remember the effective range, which is 300 yards. Okay, ignore the muzzle velocity. Then we have the characteristics of .22 bore rifle. .22 bore rifle is divided into two types. One is of .22 number 4 Mark 4, number 2 Mark 4, which is commonly referred to its by nickname, which is .22 Mark 4. Another one is .22 Deluxe. Okay, so these are the common names which we used in our training, which is .22 Mark 4 and .22 Deluxe. What you have to remember the length, weight and the effective range of both these rifles. Okay, moving ahead, you have some of the safety precautions which you have to follow when you are firing. Very basic. आप सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या करते हैं? सबसे पहले आपको अपना जो सेफ्टी कैच होता है उसको यूज़ करना है. अपने फॉरवर्ड द सेफ्टी कैच एग्जामिन करना है आपको अपने चैम्बर को, एंड बोल्ट नोब को फॉरवर्ड पुश डाउन करना है. ट्रिगर कंट्रोल और सेफ्टी कैच होना चाहिए. ड्रिल कैटरेजेस को आपको इंश्योर करना चाहिए कि उसमें कोई भी लाइव एम्युनिशन ना हो. देन हाउ डू यू स्ट्रिप अ राइफल? राइफल की स्ट्रिपिंग हम कब करते हैं? सो देयर आर टू सर्कमस्टांसेस इन विच अ राइफल इज स्ट्रिप्ड. वन इज व्हेन इट इज going for cleaning purpose, and another one is that some part of the rifle is not functioning well, and that to adhere to that particular part which is not working, to repair that particular part, you have to strip a rifle. तो राइफल को जब आप स्ट्रिप करते हैं तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है, और इसमें वो पैटर्न नहीं दिया है किस किस पार्ट्स में आपको राइफल को स्ट्रिप करना है. यू आर जस्ट गिवन विद द सीक्वेंस जब आप राइफल को क्लीन करते हैं. लेकिन द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर बाय स्ट्रिपिंग द राइफल इज दैट कि आपको हमेशा जो आपके राइफल का एम होगा दैट शुड बी टुवर्ड्स द ग्राउंड, और आपके हमेशा जो राइफल है दैट शुड बी होल्ड बाय यू इन द नीलिंग पोजिशन
and face towards the ground, and it should be in your left hand, and while you should strip the rifle with your right hand. So this is the procedure. You can just read it out, very basic and very simple. Okay, then we have assembling the rifle. अब जब आपने राइफल को स्ट्रिप कर लिया है, then you have to assemble it all together also. ठीक है, तो आप कैसे assemble करेंगे? Same procedure. सम ऑफ द पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर कि आपको ये इंश्योर करना है कि मैगजीन अपनी प्लेस में है. यू हैव टू प्रेस इट, इंश्योर दैट द मैगजीन इज फिक्स्ड. कुछ ऑफ दिस मतलब कुछ प्रिकॉशंस दी गई हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं विच इज़ वेरी बेसिक. यू जस्ट गिव देम अ रीड. ठीक है, आपको पुश फॉरवर्ड करना है ट्रिगर को, देन यू हैव टू अप्लाई द सेफ्टी कैच. थंब स्प्रिंग को आपको ठीक से सेट करना है. Points to remember is that bolt head should be fully tight and safety catch must be applied. Number of bolt जो हैं वो राइफल के नंबर से मैच करने चाहिए, which is written on the rifle. Then we have care and cleaning the rifle. So this is what I was talking about कि these are the things which you are required when you are cleaning a rifle. Okay, pull through, wire gauge, funnel for oil and flannel. ठीक है. नाउ अब जब आप राइफल को साफ करने के पर्पज से, फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग व्हेन यू आर स्ट्रिपिंग द राइफल, यू हैव टू क्लीन द राइफल इन दिस सीक्वेंस. फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द बैरल, देन मूव ऑन टू द चैम्बर, बोल्ट, मैगजीन एंड द bayonet and scabbard. Then we have loading and unloading, that how do you load a magazine of the rifle and how you unload the magazine of a rifle. So loading को आपको क्या place करना है, you have to remember that आप rifle हमेशा load करेंगे while keeping the rifle into left hand, because the ammunition should be in your right hand, because that is the most prominent part. ठीक है. Then right hand आपको ground पर रखना है, rifle should be towards the ground, and then you have to load the rifle. Similarly in that position also you have to unload a rifle. Right hand आपको ground पर रखना है and draw up the left hand and stand up quickly. ठीक है, आपको करते हैं ना कि एकदम I'm not remembering the word right now, लेकिन you have to do this process very fast, loading and unloading and stripping and assembling the rifle. ठीक है, वो क्योंकि वो आपसे करवा सकते हैं. Then we have position and hold. There are only 4 types of firing position. आपको 4 firing position mainly है. आपकी standing position जो कि हमारे उसमें यूज़ की जाती है इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन में भी. Then you have sitting position, lying position and the kneeling position. Kneeling position in NCC is mostly used, जो कि अभी हमने पढ़ा कि जब आप राइफल को स्ट्रिप कर रहे हैं या फिर जब आप राइफल को असेंबल कर रहे हैं तो आप नीलिंग पोजीशन में करेंगे. स्टैंडिंग पोजीशन इज मोर यूज्ड इन द कॉम्पिटिशंस. ठीक है, सिटिंग पोजीशन में आप यूजुअली नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज नॉट मोस्ट प्रेफर्ड बाय द शूटर्स, बट सिटिंग पोजीशन में भी आप कर सकते हैं. Now the firing position which we use is the lying position in NCC, क्योंकि NCC में हमेशा हम फायरिंग lying पोजीशन में करते हैं. कोई सी भी आप पोजीशन लेंगे, यू शुड रिमेंबर कि आपकी कंफर्टेबल पोजीशन हो, उसमें आपका फर्म होल्ड हो, आपका एम करेक्ट होना चाहिए, एंड द एम शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड व्हेन द ट्रिगर इज प्रेस्ड, बिकॉज व्हेन यू प्रेस द ट्रिगर देयर इज अ सर्टेन फ्रिक्शन विच इज कॉज्ड. ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट व्हेन द एम्युनिशन लेफ्ट द राइफल देयर इज अ सर्टेन फ्रिक्शन विच इज कॉज्ड, सो उससे आपका एम डिस्टर्ब हो सकता है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू I will say that is what you have to practice in your regular days, कि जब भी आप फायर कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को आप कैसे अडर करेंगे अपनी प्रैक्टिस में, दैट इज वन थिंग विच यू नीड टू प्रैक्टिस अपॉन, and that is the main task of firing only. ठीक है, then you have position and hold. जब भी आप position लेते हैं, you have to remember that whenever you are holding position, the lying position, first the body should be slanting. ठीक है, आपको वी पोजीशन बनाना है. आई एम नॉट रीडिंग द स्टेप्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेड इट. आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप वी ऐसी पोजीशन में रहेंगे जिसमें आपका जो बॉडी होगा वो पूरा वी शेप में होगा, लाइक दिस. ठीक है, और आपकी बॉडी को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? थ्रू योर एल्बोज. और जो मैगजीन होगी दैट शुड गेट सपोर्ट फ्रॉम योर शोल्डर. जो मैगजीन है दैट शुड टच योर शोल्डर. सो दिस इज द पोजिशन विच यू हैव टू टेक वाइल फायरिंग. ओके, देन यू हैव एमिंग. तो जब भी आप एम कर रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर कि आपको टारगेट पर फोकस करना है. राइफल को आप ठीक से होल्ड करेंगे, अपना लेफ्ट आई को क्लोज करेंगे, फोकस ऑन द फोर साइड एंड द बैक साइड एंड द यू पोजीशन. सो यू के बीच में से आप फोर साइड रियर साइड को मैच करेंगे और टारगेट पे आपका वो बिल्कुल हिट होगा. देन you have the trigger control.
ट्रिगर कंट्रोल बेसिक है कि कैसे आपको ट्रिगर को अपना कंट्रोल करना सीखना है इवन इन एक्सट्रीम सिचुएशंस. फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ द इंडेक्स फिंगर. ठीक है, जिससे आप ट्रिगर को प्रेस करते हैं. मस्कुलर कंट्रोल होना चाहिए आपके हैंड पर. कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर बिटवीन द राइट आई ब्रेन एंड राइट इंडेक्स फिंगर, ताकि यू नो दे शुड हैंडल दीज सिचुएशंस इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस. ठीक है, देन आपको होल्डिंग आउट कराया जाता है. यू नो जब आपको राइफल लेके छोड़ दिया जाता है एक पोजीशन पे, दैट इज होल्डिंग आउट. तो होल्डिंग आउट की प्रैक्टिस इसलिए की जाती है सो दैट यू कैन हैव अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर बॉडी मूवमेंट्स. ओके, देन यू हैव प्रैक्टिस द परफेक्ट एलिमेंट ऑफ होल्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन राइट आई ब्रेन एंड राइट. बेसिक. Now the important thing which you have to remember is the process of limber up, because it got asked in my practical also and I didn't knew this at that time. Limber up is a sort of a rehearsal or warm up which we do before firing. So a little bit of physical activity in which we indulge before the firing actions, that is known as limber up activities. Okay, or just limber up. देन फायरिंग अ शॉट. आप फायरिंग कैसे करते हैं? वेरी बेसिक. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट सर्च अ वीडियो ऑन द यूट्यूब. आपको यू नो पूरा एक तरीके से सीक्वेंस मिल जाएगा कि एनसीसी में यू नो आपको क्या क्या कमांड दी जाती हैं एक शूट को फायर करने के लिए. सो जस्ट रीड इट. मेन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी आप एम कर रहे हैं आपका ब्रीदिंग यू नो शुड बी जेंटल एंड इट शुड बी रिस्ट्रेन. सम ऑफ द सेफ्टी प्रिकॉशंस में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि अगर राइफल पे रेड फ्लैग है और एनी रेड सिंबल इज गिवन ऑन अ राइफल देन इट इज नॉट सर्विसेबल. ठीक है, और आप उसको फिर शूटिंग में भी यू नो यूज नहीं कर सकते हैं. इफ फायरिंग इज सस्पेक्टेड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, वेपन शुड बी प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड. आपके वेपन जो होंगे वो ग्राउंड पे होंगे एंड द फायरर शुड स्टैंड क्लियर. ठीक है, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन लोडिंग एंड अनलोडिंग होनी चाहिए टूवर्ड्स द टारगेट. अगर आपका टारगेट है देन यू हैव टू पॉइंट द राइफल टूवर्ड्स दैट टारगेट. And if not, then you have to you know keep the face of the rifle towards the ground. Okay, a very basic video and I know I'm going very fast on this, but what I would say is that it is a PDF of 15 pages, so I have to finish it in only one video. So I'm trying to be very crisp and clear in this video. And during the inspection, loading, unloading and all the rifles must point towards the target. Okay, I have discussed this point कि अगर टारगेट आपको दे रखा है रेंज पर तो आप टारगेट की तरफ फेस करिए अपने राइफल का. एंड इफ द टारगेट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू फेस द राइफल टूवर्ड्स द ग्राउंड. ओके, देन यू हैव ऑन द कमांड निरीक्षण के लिए जांच शस्त्र. ठीक है, सो इस कमांड पे आप क्या करते हैं कि आप अपना जो भी राइफल है या वट एवर आर्म यू विच यू आर गिवन, आप उसका मैगजीन चेक करते हैं वेदर इट इज लोडेड और वेदर देयर इज लाइव एम्यूनिशन इन इट और नॉट. सो जब भी आपको ये कमांड दिया जाता है निरीक्षण के लिए जांच शस्त्र, विच मीन्स एग्जामिन आर्म्स. आप अपने आर्म्स को वट एवर आर्म और वेपन यू आर गिवन आप उनको एग्जामिन करेंगे एंड इफ एवरीथिंग इज ओके आप कहेंगे सब ठीक है साहब. एंड इफ इट इज नॉट देन you will tell the problem whatever is there with your weapon. Okay, then you have the range procedure. So I already told you that range procedure में just hit up the YouTube and search a video of the range procedure in NCC. आपको पूरा एक कमांड का सीक्वेंस मिल जाएगा और इसी सीक्वेंस में आपका एक रेंज प्रोसीजर चलता है. एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अपने दोनों CATCs में फायरिंग करी है, यू शुड रिमेंबर द रेंज प्रोसीजर प्रैक्टिकली इन योर माइंड ओनली. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कमांड्स कहीं पर बहुत डिफरेंस होती हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. Starting off with MPI and elevation. What is mean point of impact? The central point of area which is covered with a group of rounds fired with consistent aim and held at the same aiming mark is called MPI. ठीक है, so for example if I would say that this is the aim and this एक particular area में आपके 5 shots लगे हैं, so this is the MPI where all the 5 shots are there. ठीक है, सो दिस इज द मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जहाँ पे आपको 5 शॉट या वट एवर नंबर ऑफ शॉट्स यू आर गिवन जहाँ पे आपको 5 शॉट मिलते हैं, सो वो होता है आपका MPI. नाउ अनदर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कि एलिवेशन आप कैसे याद रखेंगे. सी, अब जो आपका मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है जो कि ग्रुप ऑफ राउंड होता है जो कि आप कंसिस्टेंट फायर करते हैं, सो उसके अलावा कभी आपका एक शॉट यहाँ लगा है एंड गेस अनदर शॉट इज हियर, अनदर शॉट इज हियर and this is another shot is here. Okay, 1 2 3 4 and 5. You were given 5 shots and these are the places where you hit it. So 5 shots आपके एक सर्कल में आ गए हैं and this is known as mean point of impact. ठीक है, अब elevation, जब आप इन shots का difference measure करेंगे, that what is the difference between this, what is the difference between this,
वन शॉट टू अनदर, ये होता है आपका एलिवेशन, यानी कि एक शॉट से कितना दूर आपका दूसरा शॉट है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एलिवेशन, कि कितना एलिवेशन है आपके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कितना एलिवेशन है आपके एम किए गए शॉट्स में. सो दैट इज एलिवेशन. देन यू हैव ऑल्ट्रेशन ऑफ साइड. ऑल्ट्रेशन ऑफ साइड आपका गिवन होता है कि यानी कि जब भी आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो आपका कुछ ऑल्ट्रेशन अलाउड होता है, लेकिन तब होता है व्हेन द डिस्टेंस इज 100 yards. ठीक है, अप टू 100 yards का अगर आपका रेंज टारगेट है, सो यू आर गिवन विद द ऑल्ट्रेशन ऑफ 6 inches. 300 yards में यू आर गिवन विद द ऑल्ट्रेशन ऑफ 12 inches, एंड इन 400 18 inches and 500 24 inches रिस्पेक्टिवली. अगर 50 yards का आपका टारगेट है देन इट वुड बी हाफ, और 200 yards का है तो इट वुड बी डबल द टारगेट विच इज गिवन है. सो ये क्राइटेरिया है एलिवेशन को मेजर करने का, एक तरीके से हम बोल सकते हैं. ठीक है, देन यू हैव द ग्रुप MPI. नाउ ड्यूरिंग ट्रेनिंग द ग्रुप implies 5 consecutive well fired shots fired with consistent aim at the same aiming mark. The central point of impact is called the mean point of impact of the group. तो जो भी आपका ग्रुपिंग बनता है जिसमें आपने अपने 5 शॉट फायर करे हैं, उस ग्रुपिंग का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग MPI और MPI ऑफ द ग्रुप. अब ग्रुपिंग कैपेसिटी में क्या होता है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विच कंटेन ऑल द 5 शॉट फिक्स्ड बाय अ मैन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी इज नोन एज हिज ग्रुपिंग कैपेसिटी. सो लेट मी शो यू. So imagine that this is the target and this is a circle, and in this circle, okay, just ignore the mishappening which is happening here. Okay, so these are the 5 shots where you have marked it. ठीक है, तो ये वाला जो आपका सर्कल बनता है दैट इज़ द ग्रुपिंग कैपेसिटी, कि कितने ग्रुप में आपकी कैपेसिटी है, आप उसको फायर कर सकते हैं. ग्रुप MPI होता है जिस सर्कल में आपने शॉट फायर करे हैं. ग्रुपिंग कैपेसिटी में आपके इन सर्कल के डायमीटर को मेजर किया जाता है कि इस सर्कल का डायमीटर कितना है, जितने डायमीटर में आपने ये 5 शॉट्स फायर करे हैं. सो दैट इज़ द ग्रुपिंग कैपेसिटी. ओके, so I hope it is clear to you. and moving on to the group fire. जब भी आप ग्रुपिंग फायर करते हैं आपको, अब मान लीजिए ग्रुपिंग फायर का ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है. so say for example that this is the aiming mark and this is one shot and here is another shot. अब इसके बीच का जो distance है, if it is 2.5 centimeter then you are awarded with 40 marks, and if it is the distance between 3.5 centimeter then 32 marks. So this is the criteria which is given here for the respective number of distance जो भी आपको given होते हैं. ठीक है, सो इन्हीं बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं फायरिंग में कि कितना डिस्टेंस है आपके एक शॉट में और दूसरे शॉट में. देन यू हैव एप्लीकेशन फायर. एप्लीकेशन में फायर में विच यू नीड टू रिमेंबर इज 4 parts. Pardon, one is bull, another one is inner, then you have magpie and then you have outer. So जो सबसे बाहर वाला सर्कल होता है that is known as outer, और उसके adjacent सर्कल जो होता है that is known as magpie, और जो सबसे अंदर वाला सर्कल होता है that is known as bull, और उसके बाहर होता है inner. So सबसे पहला छोटा सर्कल is bull, then you have inner, then you have magpie and then you have outer. और इसके respective marks होते हैं कि that if you are shooting in the bull area you got 8 marks, if you are shooting in inner area you got 6 marks. So 8 से आप शुरू करिए and keep it in the decreasing order by 2 marks respectively in every circle. So 8, 6, 4 and 2. So this is the criteria for marking also which is given here. Okay, moving on to the snap shooting. snap shooting में आपको डिस्टेंस दिया जाता है कि 100, 200 और 300 yards में जब आप फायरिंग करते हैं दैट इज नोन एज स्नैप शूटिंग. और मेन डिफरेंस जो होता है टाइम फैक्टर को, फायर टू डिफीट द टाइम फैक्टर, इट शुड बी डन ऑन द मिनिएचर रेंज. एक छोटी रेंज पे किया जाता है स्नैप शूटिंग, और ताकि प्रैक्टिस हो इनफ फॉर एडवांस शूटिंग कॉम्पिटिशन्स. ठीक है, तो स्नैप शूटिंग ये होता है हमारा कि जब आप छोटी रेंज में आप प्रैक्टिस करते हैं और अपना टाइम फैक्टर को एक तरीके से इग्नोर करते हैं. कॉन्टिन्यूस स्नैप शूटिंग में आप क्या करते हैं कि आप लोडिंग एंड अनलोडिंग नहीं करते हैं, यू फायर कॉन्टिन्यूसली, फायरिंग कॉन्टिन्यूसली होती है. ठीक है, आपको अगर आपकी कॉन्टिन्यूस स्नैप शूटिंग नहीं है तो हम बोलते हैं दैट इज स्टैटिक स्नैप शूटिंग. तो स्टैटिक स्नैप शूटिंग में आप क्या करते हैं कि आपने लोड करा, फायर करा, देन लोड करा, आपने फायर करा. ठीक है, सो दैट इज स्टैटिक स्नैप शूटिंग. लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, आपको 5 शॉट दिए गए हैं, आपने 5 शॉट्स इंसर्ट करे एंड देन कॉन्टिन्यूसली यू हिट दोज 5 शॉट्स. ओके,
Then you have advanced shooting competition. Advanced shooting competition is held at National Rifle Association of India, which is NRAI. ठीक है, टारगेट में 5 बुल्स होते हैं और डिस्टेंस होता है रेंज टारगेट का 25 यार्ड्स. इसमें आपको सिटिंग पोजीशन नहीं दी जाती है. You are given with 3 position: lying position, kneeling position and standing position. ठीक है, what you need to remember is आपके पास 5 bullets होती हैं और shooting range का difference होता है 25. ठीक है, 25 yards. Then you have short range. Again I am telling you, just remember the effective range and nothing else. Short range firing जो होती है .22 राइफल की, that is the range of 25 yards. And 7.62 mm राइफल की जो आपका LM ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज फायरिंग, तो लॉन्ग रेंज का है 100 यार्ड एंड शॉर्ट रेंज का है 25 यार्ड्स. ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रेंज हमने .22 का भी पढ़ा है, दैट इज 25, सो सिमिलर ऑफ 7.62 mm. लेकिन लॉन्ग रेंज में इसका हो जाता है 100 यार्ड्स. ठीक है, डोंट रिमेंबर द स्कोरिंग. स्कोरिंग आप उसी बेसिस पे डिवाइड करेंगे जो कि अभी हमने एमिंग पोजीशन में पढ़ा था कि बुल का 8 है, देन 6, 4 एंड 2 रिस्पेक्टिवली फॉर अदर सर्कल्स. ठीक है, नाउ यू हैव टू रिमेंबर द लेंथ ऑफ द राइफल विद bayonet which is 1110 mm. Then the weight with loaded magazine which is around 4.638 kg. ठीक है, then effective range of which is 400 meters. ठीक है, so you just have to remember the length, the weight and the effective range of every rifle. ठीक है, बाकी आपको समझ आ जाएगा हर एक राइफल का synonym. For example, if you are asking what is 7.62 mm SLR का full form, that is self loading rifle. ठीक है, जो कि एक बेसिक वेपन होता है सोल्जर का और these days it is used by NCC cadets for practice purpose also. So आपको क्या याद करना है? आपको इसमें याद करना है इसका लेंथ विच इज़ 45 इंचेस. यू हैव टू रिमेंबर द वेट विच इज़ 4.4 kg विच इज़ अराउंड 4 एंड देन यू हैव द रेंज ऑन ड्यूटी विच इज़ 300 yards. Part of the SLR is similar to the parts of the rifle. Then you have LMG. LMG is of 4 types: Mark 1, Mark 2, Mark 3 and Mark 4. ठीक है, so there are 4 types of LMGs which you are given. Characteristics आपको जो याद करनी है LMG की: length, weight and effective range. Range on duty of Mark 2, 1 and 2 is given. ठीक है, which is 500 yards. And weight of the gun of 1 and 2 is 23 pounds, while of 3 and 4 is 19 pounds. Okay, you have to remember the weight with full magazine, 2 points, which is 2.75 pounds. Now again, part of LMG is similar to the parts of the rifle. Then you have Sten machine gun. Sten machine gun के भी आपके 5 टाइप हैं, बस इसमें Mark 5 आपका मिसिंग है. Mark 2, 3, 4 के बाद सीधा आपका Mark 6 आता है. ठीक है, then you are given with the characteristics of Sten gun, जिसमें आपको याद करना है weight which is 6.5 pounds, maximum range which is given of 100 yards. Length is not given here, so ignore it. Again, parts of the Sten gun is also similar to that of rifle, so no need to remember it separately. Then you have 2 inches mortar or 51 mm mortar, which you have to remember the weight, which is 12 pounds, length of which is 9.9 inches, and the effective range of which is 200 yards. Remember, you have to mark the effective range, because effective range अगर आपको पता है तो आप minimum और maximum एक तरीके से अपना एक idea लगा सकते हैं. ठीक है, then again part are similar to that of the rifle. Then we have HE grenade. What is HE grenade? HE grenade आपका एक light weapon होता है जो कि mostly infantry use करती है for the purpose of training, drill practice and service. Training जब आपको उसका use के लिए बताया जाता है, और drill practice में use होता है, और service में when it is actually used for the enemy purposes. जिसका weight है around 1 pound, effective range of which is 9 yards, because the effective range of grenade is measured in a circular dimension, और circular dimension का जो range होता है that is always measured in diameter. Okay, then another thing which you need to remember here is the parts of the grenade, which is important क्योंकि इसको हम राइफल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. So part सबसे पहले आप याद कर लीजिए, इसका एक बॉडी पिन होता है, एक सेफ्टी पिन होता है. ठीक है, टू कि हम मतलब अगेन इसको एक तरीके से एक्सर्ट ना कर पाए. फिलिंग स्क्रू होता है, साइड स्लीव होता है, सेंटर स्लीव होता है. स्लीव से आप याद करिए फिलिंग स्क्रू, साइड स्लीव, डिनोटर स्लीव, और बाकी इमेज से भी आप इसको याद कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ द ग्रेनेड एंड द पिस्टल, क्योंकि पिस्टल के पार्ट्स भी थोड़े बहुत अलग हैं.
ठीक है। पिस्टल एक बेसिक वेपन होता है जो कि इनकाउंटर में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका एक स्मॉल बैरल होता है, हैंस इट कैन बी यूज फॉर फायरिंग इन एनी डायरेक्शन, और इसका पोजीशन चेंज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और सेल्फ डिफेंस पर्पस के लिए यूजुअली पिस्टल को रखा जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ राइफल, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, सो जस्ट रीड इट। और आपको याद रखना है कि इसका लेंथ होता है 9.5 इंचेस और इसका वेट होता है अराउंड 1 पाउंड। चैम्बर्स कितने होते हैं इसमें, कि कितना आप एम्यूनिशन डाल सकते हैं 1 राउंड में, दैट इज ऑफ 6। प्रिकॉशन, सम ऑफ द प्रिकॉशंस आर गिवन है कि आप हमेशा कंसीडर करेंगे पिस्टल को लोडेड वेदर इट इज इन यूज और नॉट। ऑलवेज कीप द बैरल टूवर्ड्स द टारगेट, ठीक है। और पिस्टल से कभी आपको फॉर द फन पर्पस खेलना नहीं है, वेरी बेसिक। और पिस्टल आपको बिना चेक किए नहीं देनी है किसी को भी, और डू नॉट गेट गो वेरी क्लोज टू द एनिमी व्हेन यू आर हैंडलिंग पिस्टल इन योर हैंड, बिकॉज बहुत ही जल्दी टारगेट्स को चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। So I think this is it for this video. I hope you are able to understand everything. So yes, thank you so much for watching this video. If you are having any doubt, then do let me know in the comment section. So thank you.